Good afternoon, everyone. On Good behalf of afternoon. Institution of Engineers, Faridabad Local Center, I welcome you all. So we start today's seminar with lamp lighting. Now I request Chairman Engineer Sandeep ji for his welcome note. Welcome to one and all, and a very big thank you to Pradeep ji, the core of all these webinars which we have been having and arranging around. Okay, safety is the topic today, and the theme of the topic today is something on getting young mind safety or young safety for young or something like that. I don't remember the exact words. This is what I get. And 4th March, they say, is the safety day. And since safety is not which can be done in one day, so now they have got a concept called Safety Week. And it just came to my knowledge that today is the 51st Safety Week celebrations they are talking about. From 4th to 11th, they take the Safety Week. And in this Safety Week, what they say is uh, basically to uh, know about it again and again that safety is a very important part of our life. It adds, in fact, it our day starts with safety and ends with safety. If we can maintain both the ends together and throughout the day, if we can do it, our life becomes easy and comfortable. If any lacuna at any point of time, either getting up or going to sleep, you do any mismatch, it does a negative effect to us. Today we have got very able orator with us who's going to take us through the safety. Is going to share about what safety is, how safety is, and what all technicalities of safety are there. So, uh, we've already had time, and I believe we've got few more participants joining in. So I hand over the stage and the mic back to Pradeep ji. And once again, thank you for encouraging and joining in this webinar, taking it through. Back to you, Pradeep ji. Thank you. Thank you, sir. Today we have with us Engineer Pankaj Kumar ji, who is Chartered Engineer, competent person, and lead auditor for safety trainees. So over to Pankaj ji. Thank you, Sandeep sir. Thank you, Pradeep sir. Today's topic and this industrial safety management. Good मुझे evening, दिया गया everyone. है. Good afternoon, sir. Pankaj ji, I will mute everybody, then you can unmute yourself. Just 1 minute. Yeah. Good. Very good. Pradeep sir. Yes, sir.
You हाँ can शेयर continue. करता हूँ, मैं अपनी अपनी स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ. ओके, सो इज दिस विजिबल? प्रदीप सर विजिबल हो रहा है? Yes, sir. ओके ओके. So why safety? What is the need of safety in industry? This is our topic basically, industrial safety management. Safety की जरूरत हमें क्यों है? Because we are doing lot of activities in our industries. Different type of activities हम करते हैं और उन एक्टिविटीज के अंदर वो एक्टिविटीज फ्री ऑफ हैजार्ड्स होती ही नहीं. कोई भी एक्टिविटी चाहे वो माइनर है चाहे वो मेजर है, वो फ्री ऑफ हैजार्ड होती ही नहीं. अगर हम अपना बर्थ देखें, जब हम अपने माँ के पेट में थे, तो नेचर ने हमें पहले ही प्रोटेक्शन दिया था. जैसे ही हम अपने माँ के गर्भ में आए तो प्रोटेक्ट किया, एक पूरा लेयर देके. और नेचर ये जानती है कि है ना, इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी एक्टिविटी हैजार्ड है ही नहीं. उसमें कहीं ना कहीं डिग्री ऑफ हैजार्ड किसी लेवल का है ही है. तो उसको अंडरस्टैंड करते हुए, एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड करते हुए हमें सेफ्टी की मदद लेनी पड़ती है. क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप इंडस्ट्री में देखेंगे कि हॉट वर्क भी है, वर्क एट हाइट भी है, मटेरियल हैंडलिंग भी है, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस भी है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन भी है. कहीं ना कोई हैजार्ड उनके साथ एसोसिएटेड होता ही होता है. तो अगर हम उन हैजार्ड्स को और उस रिस्क को नहीं समझेंगे, तो ये हम इम्पैक्ट डालते हैं कहीं ना कहीं adverse या नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं कहा जाए तो वाई सेफ्टी? सेफ्टी बिकॉज नीड सेफ्टी. दिस इज सेफ्टी एक तरह से आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करती है, और कहा जाए तो प्रोडक्शन लेवल, जो डिग्री ऑफ प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाती है, हैजार्ड्स को कम करती है, रिस्क को बहुत कम मिनिमाइज करती है, कहीं हैजार्ड को एलिमिनेट भी करती है, कम ही करती है. तो इस तरीके से सारी जो इफेक्टिवनेस है, जॉब सिक्योरिटी, रेपुटेशन, फैक्ट्री रिक्वायरमेंट, कॉस्ट, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन सफरिंग और कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट, ये सब जाके एक तरह से सेफ्टी से जुड़ी. बहुत सारे फंक्शन होते हैं इंडस्ट्री में, लेकिन अगर कहा जाए कि अगर सेफ्टी की वैल्यू किस तरह की है, तो मैं आपको एक शब्द में बताता हूँ कि ये इट्स लाइक ए गणेशा ऑफ इंडस्ट्री. अगर सेफ्टी नहीं है तो कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता. तो ये सभी चीजों से एसोसिएटेड है. मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ. तो an event which is unplanned and unexpected, which may or may not have resulted in damage to property or injury to person. एक्सीडेंट्स इंडस्ट्रीज में और इंडस्ट्री के बाहर होते ही हैं, और किसी भी तरीके से हो सकते हैं, वो कभी भी हो सकते हैं, और कोई भी अनप्लान. अब मैंने जो एक पिक्चर भी लगाई है, उसमें देखिए हाईवे पे गाड़ी जा रही है, और उस हाईवे पे गाड़ी जाते हुए कोई एनिमल उससे टकरा. ये बिल्कुल अनप्लान इवेंट है, अनएक्सपेक्टेड है, और कभी भी हो सकता है.
चाहे वो रोड पे है, चाहे वो इंडस्ट्री के अंदर है। तो ये एक अनप्लान इवेंट है। सेफ्टी is state of dangerousness thing. A thing is provisionally categorized as safe if its risks are deemed known and in the light of that knowledge, it is just to be acceptable. So accident prevention fundamental, the accident causes and injury causes are different. There are more than one cause for an accident. Accidents कभी भी एक सिंगल कॉज से नहीं होता। एक्सीडेंट्स के मल्टीपल कॉजेज होते हैं, तब जाके वो एक्सीडेंट है बनता है, एक्सीडेंट होता है। उन कॉजेज में बहुत सारे सब कॉजेज भी होते हैं, मेन कॉजेज भी होते हैं, तब जाके वो एक्सीडेंट्स बनता है। तो अनसेफ कंडीशन 10% बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल एंड अनसेफ एक्ट्स, ये रेशियो रहता है प्रोबेबली, जिसमें अनसेफ कंडीशन लाइक इम्प्रॉपर गार्डिंग, आगे मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगा अनसेफ कंडीशंस के और अनसेफ एक्ट के। जैसे इम्प्रॉपर गार्डिंग है, डिफेक्टिव टूल यूज कर लिया, स्लिप टिप तोड़ है, कोई लुब्रिकेंट पड़ा हुआ है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, इम्प्रॉपर हाउसकीपिंग है, काम कर रहे हैं लेकिन हाउसकीपिंग पे ध्यान नहीं है, ना उनको पीरियोडिक हाउसकीपिंग करते हैं। अनसेफ एक्शंस हैं, ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी है, किसी ने भी जाके मशीन यूटी चला दी है, ऑपरेटिंग एट अनसेफ स्पीड करते है, कोई भी मशीन है जिसके स्पीड पैरामीटर्स हैं लेकिन उसको ध्यान नहीं दिया, ओवर स्पीड कर दी है, मेकिंग सेफ्टी डिवाइसेस इनऑपरेटिव कर दी है, यूजिंग अनसेफ इक्विपमेंट कर दिया, गार्ड नहीं लगा हुआ उसके अंदर और फिर यूज कर लिया उसको मशीन को। तो इस तरह की कंडीशंस जो हैं वो एक्सीडेंट्स के मेनली कॉजेज होते हैं, जिसमें अनसेफ एक्ट 80% है, अनसेफ एक्ट्स पावरफुल होते हैं और वो 88% होते हैं, अनसेफ कंडीशन 10% होती है। तो चेन और कीवर्ड्स हैं, ऑरिजिन ऑफ फॉल्ट्स लाइक ह्यूमन फेलियर है, अनसेफ एक्ट्स हैं, अनसेफ कंडीशन है, will cause accidents and creating injuries. For example, some unsafe action. Unsafe actions like operating without authority, working on moving or dangerous equipment, rendering safety devices inoperative, using unsafe equipment, horseplay like distracting, teasing, starting, running without any cause, failure to wear safe clothing or use personal protecting devices, lack of concentration, fatigue, stresses, ill health. So these are all unsafe acts. And the unsafe conditions, unsafe condition unguarded machineries, defective slings, defective EOT, uh, unsafe arrangements, poor housekeeping, inadequate lighting, slippery floors, inadequate guarding of these machines, hot, humid or noisy environment, unsafe processes like mechanical, chemical, electrical and nuclear. तो ये जो अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट्स हैं, ये बहुत हार्मफुल है और ये एक्सीडेंट्स क्रिएट करते हैं हमारे वर्क प्लेस और हमें लगातार इफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री। तो 1939 में हेनरी साहब हुए थे, उनके पास ये इंश्योरेंस में थे और ही वाज वर्किंग इन इंश्योरेंस कंपनी और उन्हें काफी हैरानी होती थी कि इंश्योरेंस को बहुत लॉस होता था और बहुत ज्यादा है ना परेशानियों से होना पड़ता था। और फिर उसी हिसाब से उन्होंने जब देखा कि बहुत सारे इंश्योरेंस केसेस आते हैं और उनके कोई रूट कॉजेज को एनालाइज नहीं किया जाता है कि क्या है, उनको क्यूरियोसिटी थी कि भाई ये क्यों होते हैं, व्हाट वाज हैपनिंग इन दैट एक्सीडेंट्स, कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो वो सब चीजें वो फिर उन्होंने देखा, स्टडी किया बहुत सारे लैक्स के अंदर एक्सीडेंट्स को और उसके हिसाब से स्टडी करके उन्होंने है ना काफी चीजें बताई और काफी चीजें देखी। तो उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी 1939 में, जो कि हेनरीज थ्योरी के नाम से काफी फेमस है, SW हेनरीज थ्योरी, जिनमें उन्होंने एक्सीडेंट कॉजेजन को बताया गया, कैसे अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्शंस किस तरह से इफेक्ट करते हैं और उनके रूट कॉजेज को कैसे एड्रेस करना चाहिए।
जैसे फेलियर टू एसेस द रिस्क, कोई भी एक्टिविटी कर दी है जिसे हमने एसेस रिस्क को एसेस ही नहीं किया। फॉर एग्जांपल अगर क्या कहते हैं हॉट वर्क करना है और विदाउट हैंड ग्लव्स कर रहे हैं तो हम एसेस ही नहीं कर पा रहे उस रिस्क को कि वो बर्निंग कर सकता है या हम जल सकते हैं या कुछ और इफेक्ट हो सकता है उसका इंजरी। जैसे लैक ऑफ कंट्रोल है, जैसे कोई लिमिट स्विच है हमने क्रेन का ठीक नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, उसको चेक नहीं किया, उसको कैलिब्रेट नहीं किया, उसको मॉनिटर नहीं किया, उसको हमने चेकलिस्ट के द्वारा पीरियोडिक इंस्पेक्शन के थ्रू चेक नहीं किया, तो वो सब चीजें लैक ऑफ कंट्रोल है सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम में। कंप्लायंस को हमने फॉलो नहीं किया। बेसिक कॉजेज ये पर्सनल फैक्टर हैं कि कोई रात को सोया नहीं है, स्ट्रेस में आ गया है और वो वहां पे फिर काम कर रहा है वर्क प्लेस में, या स्ट्रेस में कर रहा है, या उसका एर्गोनॉमिक ठीक नहीं है बेसिक कॉजेज में। तो ये सब चीजें इफेक्ट कर रही हैं। फिर इमीडिएट कॉजेज हैं, तो सब स्टैंडर्ड एक्ट्स हैं, सब स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं कि मशीन पे काम कर रहा है, नीचे ऑयल गिरा हुआ है, स्लिपरी कंडीशन है, मूवेबल मशीन है, तो ये इमीडिएट कॉजेज हैं। कुछ कॉन्टेक्ट विद एनर्जी है, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट हो जाता है डिफरेंट, तो वो सारे कॉजेज हैं जिससे पीपल लॉस, प्रॉपर्टी लॉस, प्रोसेस लॉस, एनवायरमेंटल, सर्विस, डाउन टाइम्स, ये सारे के सारे इनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो हेनरी साहब ने फिर इसको इस तरह से करा कि डोमिनोज थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि 5 फैक्टर होते हैं डोमिनोज: सोशल, एनवायरनमेंट, फॉल्ट ऑफ पर्सन, अनसेफ एक्ट, कंडीशन, एक्सीडेंट, इंजरी। तो अगर एक भी कॉजेशन अगर आप जो डोमिनो हटा देते हैं तो ये एक्सीडेंट इंजरी तक पहुंच ही नहीं पाता। फॉर एग्जांपल अगर हमने अनसेफ एक्ट हटा दिया, अनसेफ कंडीशन हटा दी, तो वो बिल्कुल भी इंजरी या एक्सीडेंट नहीं होगा। फिर लास्ट ईयर उन्होंने बर्ड फ्रैंक जूनियर्स ने डोमिनोज को वो किया, स्ट्रेंथन किया उन्होंने, डोमिनोज को और स्ट्रेंथन किया। उसके बाद ये वाला जो मेजर कॉजेज और एक्सीडेंट और लॉसेस निकल के आए, लैक ऑफ कंट्रोल बाय मैनेजमेंट। हेनरी साहब ने 329:1 की रेशियो दी, जिसमें उन्होंने मेजर एक्सीडेंट, माइनर एक्सीडेंट्स, नो डैमेज और नो इंजरी केसेस बताए। 300 नियर मिसेस हैं, 29 माइनर एक्सीडेंट्स हैं और 1 मेजर एक्सीडेंट। वन मेजर एक्सीडेंट इज द बेसिकली रिपोर्टेबल और फैटेलिटी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये बेस है 300, अगर आप देखेंगे तो 300 बेस है। अगर हम नियर मिसेस को गौर से देखें और उनको एनालाइज करें, उन पर वर्क करें, उनके हैजार्ड्स को अंडरस्टैंड करें, उनको उसके रिस्क को इवेल्युएट करें और इन 300 को हम मिनिमाइज करते रहें। जैसे अभी 300 है, 250 हो गई, 200 हो गई, तो वो कभी भी कन्वर्जन नहीं हो पाएगी 29 में, कभी भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी 1। तो इसका मतलब क्या है कि हम जीरो एक्सीडेंट, जीरो इंजरी अचीव कर लेंगे इफ वी आर लुकिंग इन नियर मिसेस केसेस। और बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इंडस्ट्री में जनरली देखा जाता है कि नियर मिसेस पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं, हम उसको बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, जबकि नियर मिसेस पोटेंशियल हैजार्ड है, पोटेंशियल हैजार्ड है उनके अंदर नियर मिसेस में। उनको इवेल्युएट करना है, उनको स्टडी करना है, उनको आपने क्वांटिफाइड करना है, उनको क्वालिटेटिवली देखना है कि किस तरह की क्वालिटी का हैजार्ड है, रिस्क है इसके अंदर, तो जाके हम इस 300 नियर मिसेस पे काम करेंगे और तब जाके हमारे 29 1 ये एलिमिनेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है नियर मिस थ्योरी। तो मैनेजिंग सेफ्टी और मैनेजिंग एक्सीडेंट बेसिकली 80-20 रेशियो होता है। अगर मैं वैसे कहूँ तो एक प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अप्रोचेस होती है हमारे सेफ्टी के अंदर। प्रोएक्टिव, हमें 80% रहना है, 20% भाई रिएक्टिव हो गई है, एक्सीडेंट्स हो गए हैं, आपका कुछ कॉजेज हो गए हैं, इंजरी हो गई है, कुछ प्रॉपर्टी डैमेज हो गए हैं, तो हमें अगर हम 80% प्रोएक्टिव अप्रोच करेंगे, लाइक हम सेफ्टी इंस्पेक्शन रेगुलरली मॉनिटर करते हैं, सेफ्टी चेकलिस्ट हम प्रॉपर फॉलो करते हैं, इसके अलावा सेफ्टी ट्रेनिंग्स हम प्रॉपर फॉलो करते हैं, इसके अलावा एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन हमने बहुत थॉरली किया हुआ है, और जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के कॉजेज निकल के आ रहे हैं वो हम उसके प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको प्रोसेस में डाल रहे हैं, उन कॉजेज को, प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, उन कॉजेज को स्टडी करके, तब जाके वो प्रोएक्टिव अप्रोच हमारी स्ट्रेंथन होती है और हम बेटर तरीके से सेफ्टी मैनेज कर पाते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट, प्रिंसिपल 1, एन अनसेफ एक्ट
an unsafe condition, an accident, all these are symptoms of something wrong in the management systems. Basically होता क्या है कि हमारी नेचर इस तरह से काम करती है कि कभी भी वो एकदम से एक्सीडेंट नहीं देती है या एकदम से हम बीमार नहीं पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कुछ ना कुछ अगर फीवर आना होगा तो फ्लू हो जाएगा, आपको क्या कहते हैं फटीग हो जाएगा हल्का सा, या कुछ सिम्टम्स आ जाएंगे, हम उनको नजरअंदाज करेंगे और सही तरीके से अपने को रेस्ट नहीं देंगे तो या मेडिसिन नहीं लेंगे तो आगे वो बन के फीवर में आ जाएगा और मैंडेट लॉस्ट हो जाएंगे, हमें रेस्ट लेना पड़ जाएगा। तो नेचर जो है वो पहले सिम्टम्स देंगी, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट से पहले सिम्टम्स देगी, कहीं ना कहीं सिम्टम्स मिलेंगे, तब जाके वो एक्सीडेंट्स में कन्वर्ट होंगे। अगर हम उन सिम्टम्स को रीड कर लेते हैं बिफोर टाइम तो हम उस एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर देते हैं, और वो सिम्टम्स ही हमारी नियर मिसेस होती हैं। बेसिकली हम उन नियर मिसेस को पहचाने, उनको रिकॉग्नाइज करें प्रॉपरली और फिर उन पर एक्शन लें, तब जाके ये मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रेंथन होता है। तो प्रिंसिपल 1 में अनसेफ एक्ट है, अनसेफ कंडीशन, ये सिम्टम्स देंगी आपको, ठीक है? क्या मैनेजमेंट सिस्टम में क्या चीज़ है और या लीडरशिप में क्या चीज़ है। और second principle, a certain set of circumstances can be predicted to produce severe injury. These circumstances can be identified and controlled. तो कई एक्टिविटीज होती हैं जो नॉन रूटीन होती हैं, कई एक्टिविटी होती हैं रूटीन होती हैं, ठीक है? वो सर्कमस्टांसेस हमें प्रिडिक्ट करने हैं जो कि सीवियर इंजरीज दे सकते हैं। आइडेंटिफाई करना है, उनको कंट्रोल मेजर्स उनके बनाने हैं, ठीक है? उनको एलिमिनेट करना है। सेफ्टी शुड बी मैनेज लाइक एनी अदर कंपनी फंक्शन। होता क्या है, जनरली हम सोचते हैं कि सेफ्टी है तो ठीक है, ये तो मतलब सर्विस फंक्शन है एक तरह का और ये प्रोडक्शन से, बट ऐसा नहीं है। नाउ द सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है और सेफ्टी कैसे दूसरा फंक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, आपका स्टोर फंक्शन है, ठीक है? किसी भी मेंटेनेंस किसी भी फंक्शन के तौर पे ही इसको लिया जाता है। इसको हमेशा अपने वर्क प्लेस पे स्ट्रेंथन किया जाता है और इसको बहुत अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि स्ट्रेंथन हो सेफ्टी। हम कहते हैं कि इसमें अगर हम इसको थंब रूल में देखें तो हमारे 5M और 1E होते हैं, जैसे मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, मैनेजमेंट एंड 6 1 एनवायरनमेंट। ये 6 जो पॉइंट्स हैं इनको ही स्ट्रेंथन करते हैं हम अपने सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में। इसमें सबसे वन ऑफ द मोस्ट जो फैक्टर है वो मैन है, जिसको हमें स्किलफुल भी बनाना है, जिसको नॉलेजेबल भी बनाना है, ठीक है? जिसको फंक्शन अच्छी तरह पता होना चाहिए, जिनको हैजार्ड्स के बारे में, रिस्क के बारे में इवैल्यूएशन होना चाहिए, पूरा रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए कि भाई ये हैजार्ड्स हैं। So management should direct the safety effort by setting achievable goals, by planning, organizing, controlling to achieve them. ये बेसिकली सेफ्टी गोल ओरिएंटेड है, जीरो एक्सीडेंट, जीरो इंजरी। अगर हम गोल ओरिएंटेड नहीं है तो हम उसमें एफर्ट नहीं डालते हैं और हम उसको अचीव नहीं कर पाते हैं टाइमली। ये भी एक तरह की टाइमलाइन के साथ ही है। उसी को अचीव करना है कि डेली एक टाइम है कि भाई इस पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर हमें 8 आवर्स की अगर शिफ्ट है, बी शिफ्ट है, सी शिफ्ट है या ए शिफ्ट है, तो इसमें हमें अपना जो पूरा का पूरा वो लगाना है, चाहे भले ही सारे प्रोसेस सेम है, हमें हमेशा शिफ्ट से पहले वो चेक्स पॉइंट्स करने ही करने हैं। उनको अगर शिफ्ट के बीच में भी चेक्स पॉइंट्स अगर कुछ हैं, बनाए हुए हैं, प्रोसेस बनाए हुए हैं, डिफाइन है सेफ्टी प्रोसेस, तो उन्हें फॉलो करना है। हमें पीपी फंक्शन पूरा फॉलो करना है। तो ये सब चीजें बेहतर तरीके से हमारे को इम्प्लीमेंट करनी है। तो मैनेजमेंट शुड डायरेक्ट द सेफ्टी एफर्ट बाय सेटिंग अचीवेबल गोल्स, बाय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग टू अचीव देम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैनेजमेंट का डायरेक्ट रोल है इसमें। So principle 4, the key to effective line safety performance is management procedure that fix accountability. Accountable है, हर कोई accountable है। It's a line function. It's not a staff function. ये line function है। इसके अंदर top MD से लेके worker तक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरा उन्होंने एफर्ट डालना है इसमें और रोज ही काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्कर ने आके चेक करने हैं अपने पॉइंट सारे के सारे, ऐसे ही ऑनर ने भी आके चेक करने हैं अपने पॉइंट्स की। वो मैनेजमेंट फंक्शंस में है, लीडरशिप में अंदर है, तो उन्होंने वो फंक्शन चेक करने हैं। अगर उन्हें आधा घंटा 1 घंटा अगर उन्होंने टाइम स्लॉट दे रखा है तो उसको देखना है कि
कि भाई वो प्रोसेस ठीक है नहीं ठीक है। स्टार्ट विद सेफ्टी, चाहे वो टूल बॉक्स स्टॉक में है, और विजिबल रहना है। लीडरशिप का यही फंक्शन है कि उसको विजिबल रहना है सेफ्टी के अंदर। अगर विजिबल नहीं है कि कमेटी की मीटिंग्स में प्रेजेंस नहीं है, या टूल बॉक्स टॉक्स होती हैं या पेप टॉक्स होती हैं सेफ्टी में, उसमें अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाते हैं, तो मतलब फिर वो दिक्कत हो जाती है। इसलिए है ना, उसको ठीक से हमें इम्प्लीमेंट करना है, टॉप टू बॉटम, इट्स ए लाइन फंक्शन। The function of safety is to locate and define the operational errors that allow accidents to occur. The function can be carried out two ways: by asking why, by asking whether or not certain known effective controls are being utilized. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें why रखना ही रखना है कि why it was happened, क्यों हुआ था ये, कैसे हुआ था, कब हुआ था, वो सब चीजें हमें देखनी है, और उस ऑपरेशनल एरर्स को हमें एलिमिनेट करना है। सो वर्क प्लेस पे पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ सेफ्टी हैजार्ड्स बहुत हो सकते हैं। लाइक ये मैं लिस्ट आप देख ही रहे हैं कि इसमें बहुत सारे हैं, जैसे फॉर कन्फाइंड स्पेसिस हैं, आपका इलेक्ट्रिकल्स हैं, फॉल्स हैं, स्लिपरी फ्लोर्स हैं, स्लिंग्स हैं, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं, आपको हॉइस्ट हैं, ईओटीज हैं, डिफरेंट टाइप के स्लिंग्स हैं। अगर उनका एंगल नहीं पता, गलत स्लिंग लगा दी है तो भी मटेरियल डैमेज हो जाता है या फॉल हो जाता है, फॉलिंग ऑफ मटेरियल है। वॉकवेज हैं, बॉक्स वॉल्स एंड फ्लोर ओपनिंग्स हैं, वार्निंग डिवाइसेस सही नहीं लगा रखी हैं, इमरजेंसी स्विच मशीन का ठीक नहीं है, उसको ठीक नहीं कराया हुआ, तो ये सारे पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ सेफ्टी हैजार्ड्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट लिफ्टिंग में है क्या, लाइटिंग में क्या, फाइबर्स में क्या, फायर्स में क्या, फोकलिफ्ट ऑपरेशन है उसमें क्या, मटेरियल हैंडलिंग है, कई तरह के शेप्स और साइजेस के मटेरियल उठाते हैं, और कई बार ओवरलोडिंग कर देते हैं, ठीक है। कई बार हमने देखा चेन्स वगैरह काफी टूटी रहती है, इवन दो उनके जो फ्रेम्स हैं आगे के, जो फॉक्स को सपोर्ट करते हैं, उनमें क्रैक्स आ रखा होता है। मतलब इवन वो कभी भी फेल हो सकते हैं, उनको चेक्स नहीं किया गया टाइमली, या उनको उस पर्टिकुलर हैजार्डियस कंडीशन को एड्रेस नहीं किया गया। तो ये चेक्स पॉइंट्स पीरियोडिकली 15 डेज में, वीकली या आपको मंथली चेक करना है, देख के कि भाई कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है हैजार्ड की या रिस्क की। लाइक अगर इसको हम कंट्रोल करें सेफ्टी को, तो हम 4 उसमें पैरामीटर्स में देखते हैं, प्लान, डू, चेक, एक्ट। तो इसमें डिटरमिनिंग द पॉलिसी है, पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएचएस पॉलिसी है, एनवायरमेंट हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी। प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन है, डू है, लाइनिंग प्रोफाइलिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क है, हम रिस्क असेसमेंट्स बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं पूरा का पूरा, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ रिस्क करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी कंट्रोल करते हैं, उन कंट्रोल मेजर्स ले लेके कॉपरेशन करते हैं, आपस में टीम वर्क है, ठीक है, कम्युनिकेशन करते हैं, बकायदा सेफ्टी कम्युनिकेशंस होते हैं, कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग के थ्रू या पेप टॉक के थ्रू, या और ट्रेनिंग मटेरियल के थ्रू, या पोस्टर्स के थ्रू, या कुछ कम्युनिकेट करना है, कॉम्पिटेंसी हम बढ़ाते रहते हैं लोगों की, ताकि उनकी स्किल्स इंप्रूव हो जाए और वो कॉम्पिटेंट हो जाए। अगर वो फिर उसके बाद चेक्स बहुत हैं, उन चेक्स को करना है, पूरा एक्टिव मॉनिटरिंग है, रिएक्टिव मॉनिटरिंग है। फॉर एग्जांपल अगर एक्सीडेंट्स हुआ है तो रिएक्टिव मॉनिटरिंग है, एक्टिव मॉनिटरिंग है, ट्रेनिंग है, कमेटी है, ये सब एक्टिव मॉनिटरिंग है। इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, फिर लास्ट में रिव्यू एक्ट, ये एक्ट करते हैं, रिव्यूइंग परफॉर्मेंस है, लर्निंग लेसन्स हैं एंड प्रोग्रेस रिव्यू है, ये सब में हम देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है, डिटरमिनिंग द प्रोसीड, प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन, प्रोफाइलिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क इन डू, organizing for health and safety, implementing the plan, and check, managing of health safety divides, guidance on checking into 2 main events like measuring performance। अगर हम मेजर नहीं कर रहे तो हम मतलब कहीं भी नहीं है, हमें मेजर करना है सेफ्टी को हर हाल में, किसी बेंचमार्क के अगेंस्ट में मेजर करना है, जो हमारा स्टैंडर्ड दिया हुआ है, मैं आगे बताऊंगा स्टैंडर्ड, वो भी हमें उसको करना है तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली, और उसके हिसाब से हमें फिर उसको मेंटेन रखना है, उसको फिर एक्ट में हम रिव्यू करेंगे परफॉर्मेंस को, फिर एक्शंस होंगे उसके अंदर, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग होगा। सो अगर अगर हम ये चीज नहीं करेंगे तो इसका क्या इफेक्ट है, अगर हम ये नहीं करते तो इसका क्या हमारे वर्क प्लेस पे इफेक्ट है, कैसा एडवर्स इफेक्ट है। तो एक स्टडी हुई तो उसमें उन्होंने पॉइंट्स दिए। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि वी डोंट हैव द सेपरेट बजट फॉर सेफ्टी, तो 43% एक्सीडेंट्स बढ़ जाए ऑटोमेटिक।
अगर आप ये देखें कि अगर ट्रेनिंग्स नहीं दी है आपने, न्यू कमर आया है, कोई न्यू ज्वाइनिंग है और आपने ट्रेनिंग नहीं दी है, 52% मोर एक्सीडेंट्स। और अगर टॉप मैनेजमेंट में लीडरशिप नहीं है और एक्टिवली प्रमोट नहीं करते, एक्टिवली पार्टिसिपेट्स नहीं करते, एक्टिवली सजेस्ट नहीं करते, तो आप देखिए 470% मोर एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। कितना इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का सेफ्टी के अंदर इन्वॉल्व होना। आप मानेंगे नहीं कि ये आईएलओ का डाटा है कि 6000 लोग जो अपनी फैमिली में पर डे नहीं पहुंच पाते हैजार्ड्स के थ्रू, हैजार्ड्स और रिस्क उनको वहीं पर खत्म कर देता है वर्क प्लेस में। वो अपनी फैमिली में पहुंच ही नहीं पाते पर डे 6000 लोग। आप देखिए कितना बड़ा डाटा है, 6000 से भी अब ज्यादा ही हो गया होगा अब जो एनालिसिस आएगा नया। तो 6000 लोग तो जो कि स्किलफुल हैं, जो रोज काम करते हैं, रोज जाते हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली में नहीं पहुंच पाते, हैजार्ड उनको उस वर्क प्लेस पर ही खत्म कर देता है। अगर हम फॉर एग्जांपल कोई हमारा रिटर्न प्रोग्राम ही नहीं है सेफ्टी का, कोई हमारा कोई गोल सेटिंग नहीं है फॉर एग्जांपल, तो 130% मोर एक्सीडेंट्स हो जाएंगे वर्क प्लेस। नो मेंबरशिप प्रोफेशनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, 64% मोर एक्सीडेंट्स हैं। तो ये जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये इस तरीके से हैं कि हमें पता लगता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। कोई भी सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम, कोई भी सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोसेस सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम, ये कितना इम्पोर्टेंट है। सो रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क हैजार्ड्स कई हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, एर्गोनॉमिकल, जिसमें मैनुअल हैंडलिंग है, पुअर लाइटिंग है, पुअर एर्गोनॉमिक पोस्चर है, पुअर मटेरियल हैंडलिंग, मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग है, केमिकल्स में फ्यूम्स हैं, वेपर्स हैं, केमिकल्स हैं, मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी, अनगार्डेड मशीनरी है, इमरजेंसी स्विच नहीं है उसके अंदर, वर्क एट हाइट है विदाउट फुल बॉडी हार्नेस, विदाउट स्कैफोल्ड है, स्लिप है, ऑयल पड़ा हुआ है फ्लोर पे, ट्रिपिंग हैजार्ड्स है, केबल वहीं पे पड़ी हुई है हैप्पीजैडली, उनको प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं की हुई उनकी, तो वो सारे के सारे हैजार्ड्स जो हैं वर्क प्लेस के, वो हमें इफेक्ट करते हैं। तो रिस्क प्रोड्यूस करते हैं हाई लेवल का, लो लेवल का, मीडियम लेवल का। फॉर एग्जांपल डिफरेंट हैजार्ड्स, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको दिखाया था कि जो एनर्जी है वो एनर्जी ही कन्वर्ट हो जाती है इंजरी में। जो एनर्जाइज है, फॉर एग्जांपल प्रेशराइज वेसल है, डिफेक्टिव प्रेशराइज है, कोरोडेड वेसल है, या उसमें डेंट पड़ा हुआ है, या उसकी वॉल नहीं है ठीक से, या वॉल कैलिब्रेटेड नहीं है, वो ब्रस्ट हो जाएगा, वो इफेक्ट करेगा। या लाइट एनर्जी है, ग्लेयर लगती है, ठीक है, या लाइट पे डस्ट बहुत है, ठीक है, वो प्रॉपर इल्यूमिनेट ही नहीं हो पा रही है वर्क प्लेस पे, ठीक, वो भी एक हैजार्ड पे स्ट्रेस पैदा करेंगी। अभी बायोलॉजिकल एनर्जी है, बायोलॉजिकल हैजार्ड से आपने देखा ही है, कोविड सिचुएशन है, कितनी बायोलॉजिकल हैजार्ड है वर्क प्लेस में, कैसे बिजनेस को इंटरप्ट किया है, कैसे एडवर्सली इफेक्ट किया है। केमिकल एनर्जी है, टॉक्सिक्स केमिकल्स हैं रखे हुए हैं, सही से प्रॉपर वे में नहीं रखे हुए, ना उनकी मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट एड्रेस की हुई है, ना फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी हुई है, ना उनकी हैंडलिंग सिस्टम ठीक है, कंप्रेस गैसेज हैं वो भी अनकंट्रोल्ड हैं, उसमें वॉल नहीं है, ठीक है, वो कोडेड नहीं है, तो वो सब चीजें क्या कहते हैं हैजार्ड्स में कन्वर्ट होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लॉकआउट टैगआउट सिस्टम्स हैं नहीं लगे हुए हैं, इमरजेंसी स्विच जो है वो आइडेंटिफाइड नहीं है, केबल्स हैं वो प्रॉपर ड्रेस नहीं है, प्रॉपर वे में बाइंड नहीं है, अर्थिंग प्रॉपर नहीं है, अर्थिंग पिट चेक नहीं है, सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड है। थर्मल एनर्जी, फायर, फ्लेम्स, फ्रिक्शंस, हॉट प्रोसेसेस। अभी मैं ब्लास्टिंग में गया, फ्रिक्शन, एक फ्रिक्शन से है ना एनर्जाइज ब्लास्टिंग ऑपरेशन में कई प्रोसेस, ब्लास्टिंग हैजार्डियस प्रोसेस है, ऑडिट करने गया तो वहां पे कई चीजें मिसिंग थी, जिसमें कि हॉपर के अंदर प्रेशर गेज मिसिंग है। बताइए, प्रेशर नहीं पता लगेगा तो आप कैसे मेंटेन करोगे? गन के अंदर आपका डेड पॉइंट स्विच नहीं है तो आप कैसे मेंटेन करोगे? आपका जो बॉडी अर्थिंग नहीं कर रखी जिसको आप कर रहे हैं, क्या कहते हैं, ब्लास्टिंग, वो अर्थ उसमें एक्यूमुलेट होता रहेगा चार्ज, और फ्रिक्शन के थ्रू तो दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें जो हैं कि बिल्कुल डार्क स्पेस में रहती हैं और हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो बेसिक कॉजेज मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में एनर्जीज बताई हैं, और इनमें भी देखिए अनएडुकेट जो अगर एडुकेट हाउस कीपिंग नहीं है आपकी, ठीक है, आपका प्रोक्योरमेंट
में ही सेफ्टी एनहांस नहीं है कि भाई सप्लायर को देख दिया है, कॉन्ट्रैक्टर्स को आप हायर कर रहे हैं जिनका सेफ्टी पैरामीटर नहीं है कंपनी के लिए, तो आपके सिस्टम को भी वो एडवर्सली इफेक्ट कर देंगे क्योंकि उनका अपना खुद का सेफ्टी सिस्टम नहीं है। इसलिए कंपनियां इवेल्युएट करती हैं आजकल कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। वही कॉन्ट्रैक्टर जो हमारे वर्क प्लेस में आ रहा है, हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया हो, वेदर ठीक है या नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। फिर फिजिकल फैक्टर होते हैं, बिहेवियर फैक्टर होते हैं, एक्सपीरियंस फैक्टर होते हैं, ठीक, इनएडुकेट पर्सनल प्रैक्टिसेस होती हैं। तो ये सारे आप देखेंगे, इसमें सारे फैक्टर्स हमने कॉजेस के डाले होंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, 6 पॉइंट मैंने बताया था, 5 में से एनवायरमेंटल फैक्टर होता है। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन एक्सेप्टेबल है या अनएक्सेप्टेबल है, और इसमें कॉस्ट है, इंजर्ड पर्सन है, फैमिली ऑफ द इंजर्ड पर्सन है, फैक्ट्री साइट है, नेशन है, अबव ऑल द मैनेजर है, जिसमें डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। कॉस्ट अगर आप कॉस्ट कैलकुलेशन करते हो, आप अपनी फैक्ट्री में ही देखिए, कोई अगर एक्सीडेंट रिसेंटली हुआ है तो उसकी कॉस्ट निकाल के देखिए, आपको इनडायरेक्ट कॉसेज बहुत पता लगेगा। डायरेक्ट कॉजेज, डायरेक्ट कॉजेज जो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो सब होंगी। इनडायरेक्ट कॉजेज आपकी इंश्योरेंस वगैरह हैं, वो हैं, तो कॉस्ट पड़ेंगी आपको। तो रिपोर्ट, अगर हम ये देखें कि अगर अगर इसको सेग्रीगेट करा जाए, फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट करेंगे आप फैक्ट्री की, अपनी सेफ्टी की, फैक्ट्री में सेफ्टी की परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी फैक्ट्री है तो मैं कैसे इवैल्यूएट करूंगा कि मेरी फैक्ट्री में सेफ्टी ठीक चल रही है, नहीं चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी फैक्ट्री में सेफ्टी गड़बड़ चल रही है, और कितनी गड़बड़ चल रही है, कहाँ तक गड़बड़ चल रही है, तो मुझे मेजर करना पड़ेगा उसको, उनको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली। ठीक है सर। तो उसके लिए अगर 48 आवर्स से बियॉन्ड, जिस दिन वो हुआ है उसके 48 आवर्स तक वो इंजरी हुई है और पर्सन वापस नहीं आता, तो रिपोर्टेबल लॉस्ट टाइम इंजरी होती है। इसमें डेंजरस अकरेंस भी होते हैं जो भी डिफाइन है, ठीक है। और अनप्लान्ड इवेंट, वेदर और नॉट इट इज अटेंडेड बाय पर्सनल इंजरी और डिसेबलमेंट विच रिजल्ट इन बस्टिंग ऑफ प्लांट, कोलैप्स और फेलियर ऑफ क्रेन, एक्सप्लोजन, फायर और बस्टिंग आउट। जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी रेट दिया हुआ है, इंडियन स्टैंडर्ड है, आईएस स्टैंडर्ड है हमारा, उसके अकॉर्डिंगली दिया हुआ है, लास्ट स्लाइड में मैं दिखा दूंगा आपको। उसके फ्रीक्वेंसी रेट हमें निकालना है, लॉस्ट टाइम इंसिडेंट रेट है, ये फार्मूलेज हैं, इसके थ्रू निकलेगा। सिवियरिटी रेट है, कितना सीवियर हुआ है वो, और एक्सीडेंट रेट है, फ्रीक्वेंसी रेट इनटू सिवियरिटी रेट, रिस्क इंडेक्स, इंसिडेंट रेट है। ये सारे फार्मूलेज हैं, इसके थ्रू आप अपने वर्क प्लेस की इवेल्युएट कर सकते हैं कि भाई स्टैटिस्टिक्स के थ्रू वेदर वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट। ये डिफरेंट डिफरेंट बेंचमार्किंग है जो एक मैंने आइडिया के लिए जस्ट शेयर किया कि इस तरह से फ्रीक्वेंसी एक्सीडेंट जो रेट्स हैं, वो फैटेलिटी रेट्स हैं जो किस तरह के हैं और कैसे कैसे इम्प्रूव करते हैं लोग। वहाँ पे क्या सिस्टम है अब्रॉड में, वहाँ पे हर चीज रिकॉर्डेबल है। रिकॉर्ड होने से वो डाटा जनरेट करते हैं, डाटा ही हमें डायरेक्शंस देता है कि वेदर वी आर मूविंग राइट और रॉन्ग। डाटा को देखना बहुत जरूरी है। सो इस तरीके से देखा जाता है। वर्क रिलेटेड इंजरीज को हम कई तरह से देखते हैं, रिकॉर्डेबल डेथ, लॉस ऑफ कॉन्शियस, डेज अवे फ्रॉम वर्क, ठीक है, फर्स्ट एड मेडिकल ट्रीटमेंट केसेस होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड वर्क डे केसेस होते हैं, जिसमें कि कई बार क्या होता है कि वो लॉस टाइम कर जाता है, या एज ए रिजल्ट ऑफ वर्क रिलेटेड इंजरी एन एम्प्लॉयर हेल्थ केयर प्रोफेशनल कीप्स और एम्प्लॉय फॉर डूइंग द रूटीन फंक्शन ऑफ हिज जॉब और फ्रॉम वर्किंग द फुल twist that the employee would have been scheduled to work before the injury or illness occurred. ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो एज पर ओसा रेगुलेशन है, बस की चीजें हैं। इंडियन स्टैंडर्ड 3786 है 1983, जो कि मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी रेट्स को। डिसेबलमेंट भी दो तरह से है, परमानेंट डिसेबलमेंट, पार्शियल डिसेबलमेंट वर्कर की, कि वर्कर अगर टेम्परेरी कुछ कट वगैरह गया, टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट है, और अगर कोई लिम्ब भी उड़ गया, उसका हाथ की उंगली उड़ गई है, तो वो परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाएगा उसका। तो ये टोटल डिसेबलमेंट की डेफिनेशन दी है, और इसमें हम एनालिसिस करते हैं जो मैंने स्टैंडर्ड आपको बताया 3786 के थ्रू, जैसे कैटेगराइज करके हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से देखते हैं। अभी ये आप देखेंगे कि फॉल फ्रॉम हाइट बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है ये वाला हैजार्ड्स और रिस्क,
तो इसको हम कंट्रोल करने के लिए अपने कंट्रोल मेजर्स को ठीक करेंगे, या फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, इलेक्ट्रोक्यूशन भी है, रन ओवर है। तो इस तरह से हम इसको एनालिसिस कर लेते हैं। जो आप देख रहे हैं, तो ट्रेड वाइज भी हम इसको वो कर सकते हैं कि ट्रेड वाइज में अगर हम देखें कि किसको ज्यादा वो रखा है, खलासी को ज्यादा है या रीगर को ज्यादा है मटेरियल हैंडलिंग में, या हेल्पर ज्यादा कर रहा है, तो 3-4 कैटेगरीज में ज्यादा है तो हम उस पर फोकस कर सकते हैं और अपने कंट्रोल प्रोसेस को इन लाइन कर सकते हैं। फैटेलिटीज एज वाइज होती हैं, उनको भी हम उसी हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं, एज वाइज किस तरह से हो रही हैं, फैटेलिटीज हुई हैं वर्क प्लेस पे, तो उससे भी पता लग जाता है, या इंजरीज किस तरह से एज वाइज भी होती हैं, तो उसको देखना है। इस तरह से फैटेलिटी टाइम वाइज भी निकाल लेते हैं। तो ये सारे फंडामेंटल्स हैं। तो इसके अलावा मैं क्योंकि मटेरियल हैंडलिंग में ज़्यादा होते हैं, तो मैं स्क्रीन आपको शेयर कर लेता हूँ, मटेरियल हैंडलिंग में भी बताता हूँ आपको। टाइम बहुत कम है। प्रदीप सर, Go ahead, sir. Go ahead. अच्छा, हाँ direct जी, continue. मैं मटेरियल हैंडलिंग में, हाँ जी हाँ जी, एक मिनट, मटेरियल हैंडलिंग में भी मैं मटेरियल हैंडलिंग जो है वो काफी क्रिटिकल है इंडस्ट्रीज के अंदर। मटेरियल हैंडलिंग के अंदर बहुत सारे हजार्ड एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि इसके अंदर मशीनरी इन्वॉल्व होती है और लिफ्टिंग पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट स्किल्स वो इन्वॉल्व होती है रिगर खलासी के तौर पर, और काफी कुछ है ना इसके अंदर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इंडस्ट्री में। तो अगर हम देखेंगे, अगर हम स्लिंग्स की बात करें, तो स्लिंग्स के अंदर डिफरेंट क्लासिफिकेशन। स्लिंग्स हम कई तरह की यूज करते हैं मटेरियल हैंडलिंग के लिए, लॉन्ग है, शॉर्ट है, आपका वायर रोप है, चेन स्लिंग्स है, डिफरेंट पॉलिएस्टर वेब स्लिंग्स हैं। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं सिलेक्शन के। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि कोई भी स्लिंग चल जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल मुझे मटेरियल या क्या डायमीटर है उसका, क्या सेफ वर्किंग लोड है, क्या पीरियोडिक इंस्पेक्शन है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो स्लिंग्स जो होती हैं, वायर रोप स्लिंग्स, वो डिफरेंट कैटेगरी के, फॉर एग्जांपल 6x7, 6x19, 6x37, 8x19, ये इनकी क्लासिफिकेशन है, कंस्ट्रक्शन डिटेल है। इनमें आप ये देखेंगे कि ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर। इनके अंदर सील जैसे वेरिंगटन टाइप है, सील टाइप है। अगर इसको हम और भी ब्रॉडली देखें, ये देखिए, अब ये एक अलग से डिजाइन की हुई है, ये टॉर्शन के लिए डिजाइन की हुई है, टॉर्शन स्ट्रेसेस, रोटेशनल स्ट्रेसेस के, जैसे आपने देखा वो रिग लगी होती है होल्ड करने के लिए, तो वो काफी चीजें है ना, उसमें ये टॉर्शन वाली स्ट्रेसेस वहां पे डिजाइन की हुई वायर रोप यूज करते हैं। इसके अंदर देखिए, जो भी मटेरियल हैंडलिंग हम इक्विपमेंट यूज करते हैं उसके अंदर 5:1 का रहता है रेशियो, और जो पर्सन हैंडलिंग के लिए करते हैं वो हम 10:1 का रहता है। या अगर लिफ्ट की बात करें तो 20:1 का होता है। 5:1 क्या है कि कोई भी स्लिंग, फॉर एग्जाम्पल 1 टन की स्लिंग है, तो वो डिजाइन हुई है 5 टन पे लिफ्ट करने के लिए मटेरियल। मतलब सिंपल थंब रूल है, 5:1, 5:1 रहेगा। और अगर हम सेफ्टी फैक्टर, क्योंकि पर्सन हैंडलिंग करना है तो हमें सेफ्टी फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा। तो सेफ्टी फैक्टर बढ़ाने के लिए जब हम उसको अगर 1 टन का हमने डिजाइन करना है पर्सन को हैंडलिंग करने के लिए, तो 10:1, यानी 10 टन का वो इजीली कैपेबल होगी उठाने के लिए, होस्ट करने के लिए वो वायर। और अगर लिफ्ट की बात करें तो लिफ्ट में जो होता है सेफ्टी फैक्टर, वो 20:1 होता है। लिफ्ट में अगर 1 टन का उठाना है तो 20 टन के लिए वो डिजाइन है, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेकिंग की जो होती है पर्सन हैंडलिंग की हमेशा 6 मंथ होती है। मटेरियल हैंडलिंग की इंस्पेक्शन की 1 ईयर होती है लीगली, 1 ईयर होती है मटेरियल हैंडलिंग की, और पर्सन हैंडलिंग की 6 मंथ। तो ये वाली जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वायर रोप की डिजाइन होती है, इसमें कई तरह का स्टील लगता है, इम्प्रूव फ्लो स्टील होता है, फ्लो स्टील होता है, इसमें
डक्टिलिटी ज्यादा होती है या उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अगर हम ये देखेंगे, अब एक रोप है, ये वाली इस तरह से वायर रोप बनी हुई है, तो इसके अंदर जो हम डिजाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कभी भी कैलकुलेट करेंगे, आप ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 ले बोलते हैं इसे, 1 रोप ले 7। तो अगर आप इसको आइडेंटिफाई करना है, नॉर्मल अगर किसी ने देखना है कि इसके अंदर क्या डिफेक्ट है, अगर इसके अंदर आप, मैं टेबल में भी शो करूंगा आपको, 6 वायर रोप अगर इस पर्टिकुलर के अंदर स्ट्रैंड्स, 6 वायर रोप्स हैं, अगर वो निकल गए स्ट्रैंड 6, तो डिफेक्टिव इन 1 रोप ले, मतलब ये थंब रूल है। अगर यहाँ पर 1 आपने 7 गिन लिया और अगर इसमें डिफेक्ट निकला तो वो डिफेक्टिव हो जाएगा, वो मतलब यूज के लिए नहीं है। और ऐसे ही अगर सपोज एग्जांपल अगर हम देखें रोप स्ट्रेच का, ये देखिए रोप, ये नॉर्मल अनडैमेज रोप है और ये स्ट्रेच हो गई है, ये देखिए ये स्ट्रेच। तो अगर 10% भी स्ट्रेच हो गई है ओरिजिनल लेंथ से, तो वो भी डैमेज रोप है, थंब। ओरिजिनल लेंथ से अगर वायर रोप 10% उसका इंक्रीज हो गया तो वो डैमेज है। तो वायर रोप्स के अंदर हम ये राइट मेथड है उनको वो करने के लिए, आउटर टू आउटर, आउटर टू आउटर, बिल्कुल आउटर है, और ये रॉन्ग मेथड है करने का। इसका डायमीटर का बहुत इंपॉर्टेंट, आगे मैं फार्मूला बताता हूँ। तो ये नॉर्मल डायमीटर है, अगर इसका 10% रिडक्शन हो गया इसके नॉर्मल डायमीटर का, तो ये रिजेक्टेड है, ये रिजेक्टेड है, ये डैमेज। और ब्रोकन वायर का आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं इजीली। इसको आप खोल के देख सकते हैं, कोई वायर ब्रोक तो नहीं है, अंदर डाल के इस तरह से देखा जाता है, कोई क्रैक्स तो नहीं डेवलप हो गए, कोई क्रैक्स तो नहीं डेवलप हो गए कहीं पर, तो फिर वो इजीली आप उसको देख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड है सर, ये ब्रोकन वायर्स का स्टैंडर्ड है B30.2, और इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की क्रेन्स है, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है इसके अंदर, और डिफरेंट तरीके से ही इसका रिजेक्शन क्राइटेरिया है। हम रूल मैंने आपको बता ही दिया, 6 इन 1 रो प्ले है, 6 मैक्सिमम होता है, 6 अगर ब्रोकन वायर है तो आप उसको इजीली रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओवरहेड गैंट्री क्रेन्स में इन 1 रो प्ले 12 होता है, इन 1 स्टैंड 4 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो इस तरीके से आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। टावर केन्स के अलग है, ओवरहेड हाइस्ट के अंदर 12 और 4 है, जैसे ओवरहेड गैंट्री केन्स में हाइस्ट के अंदर भी 12 एंड 4 है। ये आप रिजेक्शन क्राइटेरिया में डाल सकते हैं, या वर्कर से अपडेट कर सकते हैं, और या चार्ट बना सकते हैं इसका कि भाई इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए वर्कर हिंदी में चार्ट बना सकते हैं हम कि भाई ये अगर ऐसा ऐसा हो जाए, पिक्चर भी, इलस्ट्रेशन भी लगा सकते हैं। और हमने भी इस तरह की कई चीजें करी हैं जिससे कि वर्कर को काफी अंडरस्टैंडिंग हुई है, और हमने कुछ पिक्चर इलस्ट्रेशंस लगा लगा के उनको डिफेक्ट्स बताए हैं कि भाई ये हिंदी में ये डिफेक्ट्स इस तरह के हैं, अगर ये मिल जाए तो आप बताइए। और कई वर्कर ने आके फिर हमें इनपुट्स दिए, फीडबैक्स दिए कि सर ये डिफेक्टिव है। मैं अगर वर्कर उस एंड पे है जिसपे वो वर्क को पूरा देखता है, और वो आके अगर आके बताता है, तो प्रोएक्टिव मेजर ही एक तरह का, और इजीली हम एक्सीडेंट्स और इनको अवॉइड कर सकते हैं। तो रनिंग रोप्स होती हैं, स्टैंडिंग रोप्स होती हैं, कई तरह की हैं। इसके अंदर फॉर्मूले, अब ये देखेंगे आप, अगर एब्रेशन हो गया है रोप का डायमीटर, ये एक आपका पूरा स्ट्रैंड है, और इसके अंदर अगर ये देखिए डिफेक्ट हो गया, ये वाला, ये एब्रेशन हो गया, ये रिड्यूस हो गया, तो ये डिफेक्ट। रिप्लेस रोप इफ वायर डायमीटर वेरीज 1/3 और मोर। तो इसी तरीके से ये स्क्रबिंग एंड क्रॉसओवर और प्लान स्टैंड बैक्स हैं, हो जाते हैं कई बार, कॉरोजन हो जाता है कॉरिडोर में। टेबल्स भी आपको शो करूंगा, टेबल्स में भी कई डिफेक्ट दिखाऊंगा। ये बर्ड केज है, बर्ड केज हो जाता है तो भी आप यूज नहीं कर सकते। ये किंक हो जाता है, इस तरह से आप देखेंगे किंक हो जाता है, तो बर्ड केज बन जाएगा, एकदम ओपन हो जाएगा। वन ऑफ द डिफेक्ट। हाँ, पॉप्ड कोर हो जाती है, निकल जाती है कई बार इस तरीके से, तो वो भी है उसकी।
लोकलाइज्ड वियर टियर हो जाता है, आप देखेंगे कि यहाँ से घिस गया, यहाँ से ऐसे एब्रेशन हो गया, वियर टियर है, तो आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। उसका डायमीटर नाप के मेजर कर लीजिए उसको। वायर ऑफ बेंडिंग फटीग हो जाते हैं कई बार, तरीके से डिफेक्ट आ जाते हैं, फटीग हो गया उसका। और ये एक टेबल है जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे फटीग है तो क्या सिम्टम्स हैं, पॉसिबल कॉजेज क्या हैं, टेंशन है तो उसके अंदर पॉसिबल कॉजेज क्या हैं, सिम्टम्स क्या रहेंगे, रोप में एब्रेशन कैसे रहेगा, एब्रेशन कट और गॉज कैसे रहेगा, मैशिंग कैसे रहेगी, कोरोजन कैसे रहेगा, वो सब इसके अंदर टेबल में। इसको लुब्रिकेट करने के भी कई मेथड्स होते हैं, लुब्रिकेशन सब करते हैं, ड्रिपिंग, कंटिन्यूस कोडिंग वगैरह कर करके, ताकि वियर टियर जो फ्रिक्शन है वो कम हो और इसकी जो लाइफ है वो बड़ी रहे। ये भी करते हैं, कई बार सोयाबीन करते हैं, काफी मेथड्स हैं इसके लुब्रिकेट। वायर ऑफ प्रिकॉशन में कई बार बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे कि एक तो स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए। सेकंड क्या कहते हैं, किसी चीज मतलब उसके ऊपर कोई और मटेरियल नहीं रखना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। और उस पर कलर कोडिंग होनी चाहिए, टैग प्रॉपर होना चाहिए, इस तरीके के सारे प्रोसेस हैं। इसमें सीलिंग और वायर ऑफ के एंड को इस तरह से सीज किया जाता है, जो देख रहे हैं आप, ये है इसका, ये सारे के सारे स्टैंड्स खुल जाते हैं, तो फिर यूजलेस है। हाउस ड्रिल ड्रम्स हैं, टर्न टेबल्स हैं, इनको कॉइल करने का, अनकॉइल करने का मेथड है। आप ऐसे नहीं कि मतलब उसको अगर ड्रम से करेंगे तो देन रीविंग जो होगी वो बेटर होगी। और इसके लिए फार्मूले हैं कई तरीके के, जैसे कि आप ये वाला फार्मूला देखेंगे, फाइबर रोप कोर यूज करते हैं आप। अगर फाइबर रोप कोर है तो उसका जो फार्मूला है d² × 48 इज इक्वल टू हाफ इंच इंटू हाफ इंच इंटू 42 इज इक्वल टू 10.5। तरीके से इसके फार्मूले थंब रूल्स हैं जिनसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं d² × 45 वायर कोर इंटू फ्लो रोप। ये देखिए नॉमिनल अप्रॉक्सीमेट वेट दिया है IWRC 6/19 क्लासिफिकेशन। तो ये अलग अलग तरीके की होती है, कितनी हाइट, कितना इंच का नॉमिनल डायमीटर है, तो वो सब इसके अकॉर्डिंगली हमें फॉलो करना है, ताकि हमें सेफ्टी से हम लिफ्टिंग कर सकें, मटेरियल हैंडलिंग कर। तो SWL होता है वो अल्टीमेट ब्रेक स्ट्रेंथ अपॉन डिजाइन सेफ्टी फैक्टर होता है। ये फार्मूला थंब रूल है ये, तो आप देखेंगे 45 टन 5 9 टन इसका जो मैंने पहले भी बताया था। पेंडेंट लाइंस कन्वेंशनल टाइप बूम्स होते हैं, मैं अलग से EOT कभी दिखा दूंगा आपको किस तरह के पैरामीटर होते हैं। अभी ये वाला मटेरियल हैंडलिंग के जो टूल्स एंड टैकल्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। d²/45 डिवाइड बाय 5, ये जो बताया था वही वाला रूल है, आप सेव करके हाँ। कई बार हम स्नैच वायर ऑफ बेंडिंग एफिशिएंसी, कई बार हम शीप ब्लॉक यूज करते हैं, तो इसके लिए ये बेंडिंग रेशो होती है, इसको हमें देखना बहुत जरूरी है। जहाँ पे शीप ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं तो उसकी बेंडिंग एफिशिएंसी रेशो निकाली जाती है, तब जाके वो वायर रोप को यूज किया जाता है। सेम डिजाइन फैक्टर हैं ये, पॉइंट वो मैं, और डिफरेंट तरीके से स्लिंग लगाई जाती है। ये H और L का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लिंग के एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ, इनका फार्मूला ये देखिए 60 डिग्री और 45 और 30 डिग्री इस तरह के चार्ट लगा के दिखाए जाते हैं, तो कितना कितना टेंशन टूल एक्स पे आएगा, ये कितना टेंशन आएगा। अगर 60 डिग्री का होगा तो वर्कर इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है चार्ट में, वो उसी तरह से यूज करता है। ये किस तरह से स्लिंग लगाई जाती है, कितना होता है, जैसे अगर कोई सर्कुलर है तो उसका D/D रेशियो कितना होना चाहिए, वो सब कैसे उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बनेगी, इसमें और
फॉर एग्जाम्पल रॉकर हिच के अंदर हम इस तरह से लगाते हैं तो ये एफिशिएंसी बताता है। अगर 120 टू 180 डिग्री होता है 75% ये एफिशिएंसी आपको मिलेगी स्विंग की। अगर आपने ये इस तरह से लगाई हुई है 120 डिग्री ये वाली स्विंग अगर आपने लगाई, ठीक है। अगर आपने ये वाली स्लिंग लगा रखी है इस तरीके से लगा रखी है 30 ही डिग्री 60 डिग्री पे है तो 40% की आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी लगेगी स्लिंग्स लगाने। तो स्लिंग्स लगाना भी देखना है कि किस तरह से लगा रहे हैं और लोड हम कितना कैरी कर रहे हैं और क्या मेथड है उसका so that we can prevent the hazards और do the safe lifting। तो कई बार क्या होता है वर्कर इस तरह से स्ट्राइक करता है और इसको बिल्कुल वो कर देता है। कई बार हमने देखा इंडस्ट्री में अभी भी इस गैप को फिल नहीं करना चाहिए। जितना एंगल रिड्यूस हो जाएगा इसके अंदर उतना स्ट्रेसेस ज्यादा हो जाएंगी, इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी उतनी ही कम हो जाएगी, टेंसाइल फोर्स ज्यादा बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो डिफरेंस है, काफी चीजें हैं इसमें। सिंथेटिक वेब स्लिंग्स भी होती हैं, कई तरह की होती हैं, डिफरेंट आइज की होती हैं। पॉलिएस्टर वेब स्लिंग्स भी जिन्हें बोलते हैं PWS, नायलॉन रोप भी बोलते हैं, नायलॉन वेब स्लिंग्स भी बोलते हैं। इनके भी ग्रेड्स होते हैं, इनके भी पैरामीटर्स होते हैं, डबल प्लाई होते हैं, सिंगल प्लाई होते हैं और इस हिसाब से स्टडी करके इनको लगाना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन टैब है, डिफरेंट एंगल्स हैं जो मैंने बता था स्लिंग्स के एंगल्स हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल्स वो देखने चाहिए। इनका बेसिकली चार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वर्कर अंडरस्टैंड करे शॉप फ्लोर पे और पता रहे कि भाई अगर मैं इतने पर्टिकुलर एंगल से ले जाऊंगा तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी या क्या मेरी स्लिंग्स पे क्या डैमेज हो जाएगा। और फिर डैमेज होने के बाद कई बार क्या होता है हम उसको रिप्लेस नहीं करते और सोचते हैं कि कोई डैमेज नहीं होगा। कभी जब डैमेज हो जाती है बताता नहीं है कई बार, तो फिर वो डैमेज बढ़ जाती है और फिर वो फेलियर के रूप में आ जाता है। तो इस तरह की चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। इसमें अगर इस चार्ट को आप देखें फॉर एग्जांपल अगर पर्टिकुलर एक इस तरह की है 20,000 ये फुल कैपेसिटी में 1000 LBS लगानी है, ऑन का लोड है, फुल लोड है आप। और अगर जैसे जैसे इसके एंगल को हम डिक्रीज कर रहे हैं आप देखिए किस टाइम 6 टाइम हो गया 749 रिड्यूस होता जा रहा है लोड कैरिंग कैपेसिटी। जितना टेंसाइल फोर्स इसकी जो है इसकी बढ़ती चली जाएगी, इसकी लोड कैपेसिटी एंगल अगर इसका घटता चला जाएगा लोड कैरिंग कैपेसिटी की घटती चली जाएगी। तो मैक्सिमम अगर लेंगे तो 90 डिग्री पे आपको मिलेगा। जनरली क्या होता है कि 60 डिग्री या 45 डिग्री ऐसे है ना नहीं होती है। 60 डिग्री आइडियल होता है, 60 डिग्री में हो जाए प्रॉपर लेंथ हो H/L हो तो आप यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से कुछ फार्मूले स्विंग लोड के हमने ये वाले आप देखेंगे। स्विंग लेंथ अगर 96 इंची है, वर्टिकल हाइट 61 इंचीज है, वेट इतना पाउंड है, तो अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से अगर आप वो करते हैं तो आपको इतना वो मिलेगा स्विंग लोड। इजीली आपको 3.7 टन का लोड कैलकुलेट हो जाएगा कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5। तो ये पॉइंट है। और अगर आप ये वाला देखते हैं जो स्लिंग्स लगाने का तरीका वो हाइट वर्सेस लेंथ जो है और वेट जो है, तो अगर आप ये देखेंगे तो E is equal to टेंशन पर leg in pounds W/N into L by V। तो L sling length in inches है, vertical E is equal to vertical height in inches है, number of legs है, weight in pounds है, टेंशन पर leg in pounds है। तो ये आपका कैलकुलेट कर देगा टेंशन को और आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। ठीक है। और स्लिंग लोड्स हो गया। गुड इवनिंग पंकज जी, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। आपने काफी डिटेल्स में दिया है, अगर अगर कोई और चाहेगा तो वील रिक्वेस्ट हिम टू come back to you and or he can tell us, we will help him with further details. Will it be fine? या सर डेफिनेटली मैं कुछ डिफेक्ट्स भी दिखा देता हूँ सर ईओ की कुछ ट्रेन के प्रैक्टिकली डिफेक्ट्स। Right. ये देख लीजिए सर प्रैक्टिकल डिफेक्ट्स हैं। Fine. ये सब आप देखेंगे ये सारे डिफेक्ट्स आई थिंक विजुअली है ना सर।
Yes, yes, it is Yes, sir, visible. it's there, it's visible. ओके, ये देखिए डिफेक्ट है। और ये आप देख रहे हैं क्रेन के रोलर्स जो ट्रैक पे चलते हैं, रोलर्स हैं, रोलर व्हील्स, ये किस तरह से डिफेक्टिव है। ये देखिए क्या थिकनेस रह गई, ये फेलियर मोड में है बिल्कुल। ये सब डिफेक्ट्स हैं। ये स्लिंग्स है, थ्रोट ओपनिंग्स हैं, ये सब डिफेक्ट है। थ्रोट ओपनिंग, ये स्लिंग्स हैं, ये सब डिफेक्ट है। ये खुद ही सेल्फ डिजाइन है उनका, वेल्डिंग वगैरह कर लिए, सब डिफेक्ट है। तो ये है। और अगर आप ईओटी अगर करना चाहें तो ईओटी के भी काफी पैरामीटर्स हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल से टाइम है नहीं सर। Yeah. So, इसमें काफी पैरामीटर्स होते हैं ईओटीज के अंदर भी, क्रेन्स के अंदर, और काफी हैजार्ड्स एसोसिएटेड होते हैं, तो उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। और मेंटेनेंस पैरामीटर्स होते हैं। so what we'll do is we'll find the audience और ये डिटेल्स हम उन ऑडियंस के लिए स्पेसिफिकली ट्राई करेंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक। क्योंकि टाइम काफी कम था और सेफ्टी का ऐसा टॉपिक है, बड़ा वास्ट टॉपिक है सर, राइट सर। तो मैं कुछ ज्यादा कवर कर नहीं पाया। नहीं, आपने बहुत अच्छा कवर किया। इनफैक्ट लॉट ऑफ थिंग्स केम इनटू डिटेल्स। किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो आप ले लेना, अगर कोई पूछना चाहेगा तो वो आप फिर उसको उनको स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वो दूर कर देना। हाँ जी सर। अभी तो और होगा ना मेरे ख्याल, अभी आपका प्रेजेंटेशन में और स्लाइड्स होंगी। नहीं, मैं तो दिखा देता हूँ सर, मेरे पास तो काफी मटेरियल है। नहीं, जो आपका रेगुलर था वो पूरा हो गया। अभी तो ईयूटीज का रहना है। इसमें पॉइंट्स हैं, स्लिंग्स के ऊपर कुछ पॉइंट्स, जैसे मैंने आपको टेबल्स तो बता ही दी हैं, और ये वाला फार्मूला भी स्लिंग्स का बता दिया है। क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली कई तरह की चीज इसमें, ये जैसे बुलडॉग ग्रिप्स लगाते हैं क्रेन्स में, इनका Right. स्पेसिफिक फार्मूला है। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे एंड में है ना, वो इस तरह से बुलडॉग ग्रिप लगाते हैं, क्लिप्स। राइट। कई बार ये फेल हो जाते हैं या गलत लगाते हैं, या एक ही लगा देते हैं। तो इसका भी एक स्पेसिफिक फार्मूला लगाने का, तो वो थंब रूल के उसमें वो करना चाहिए कंसीडर। और डेड और लाइव एंड को ही कंसीडर करना चाहिए, उस हिसाब से ही लगाना है। तो अगर किसी को स्पेसिफिक नीड है कि तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। और इनका मेथड यही है कि पहले दोनों एंड पे लगाएंगे, ठीक है, और Right. फिर सेंटर में लगाएंगे। राइट। तो इसके यू बोर्ड और सैडल टाइप में कई तरह की रोप डायमेंशन होते हैं, इनका टेबल्स है प्रॉपर वे में, तो वो उसको फॉलो करना चाहिए ताकि ये फेलियर ना हो। इसके अलावा जो डी शेकल्स वगैरह हैं, राइट। ये भी इनका मेथड भी है लगाने का स्लिंग्स के साथ। जो बो शेकल्स हैं, डी शेकल्स हैं, ये भी Right. प्रॉपर वे में लगाना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज ये भी फेलियर हो जाता है। कई बार पिन निकल जाती है। ये देखिए आप, ये राइट मेथड है, राइट। ये देखिए ये रॉन्ग मेथड है। हम्म। तो वर्कर कई बार कर देते हैं अनसेफ एक्शन, और वो फिर कॉजेज हो जाते हैं। और वियर टीयर इनमें इस तरह इस एंड पे होती है, इंस्पेक्शन करें तो इधर करें ताकि वियर टीयर आप देख सकें। एब्सोल्युटली। तो ये सारे मेथड्स हैं जो मटेरियल हैंडलिंग में यूज करने चाहिए। बुक्स के अंदर थ्रॉट ओपनिंग मैंने आपको प्रैक्टिकल एक बताया ही कि थ्रॉट ओपनिंग हो जाती है या गलत तरीके से लगाते हैं। ये मेथड सारे गलत हैं ड्रिल उठाने के। तो लोड पूरा आना चाहिए सब, ये इस तरह से देखिए गलत लगा रखा है। ठीक है। रॉन्ग मेथड है। तो
ये देखिए आप, ये जो एप्लीकेशन मैंने बताई थी कि ये वाला राइट मेथड है, ये रॉन्ग मेथड है, क्रेन पे लगा होता है, आप देखेंगे तो गौर से। क्योंकि पिक्चर्स का यूज इसलिए सर कि व्यूअर्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह से यूज करना है, किस तरह से इसको अप्लाई करना है। ये रॉन्ग मेथड है, देखिए करेक्ट यूज ऑफ शैकल इस तरह से। आई बोल्ट को यूज गलत करते हैं, Yes. आई बोल्ट बहुत बार फेलियर हो जाता है, तो ये गलत मेथड है कि अगर इस तरह से उठाना है तो इधर लगा दिया ऐसे, या इस तरह से उठाना है इधर लगा दिया, या कॉलर्स शिम्स नहीं दिए उसके अंदर, और एक ही स्लिंग को अगर ऐसे करके लगा दिया तो भी गलत है, वो फेल हो जाएगी यहाँ से Right. कॉर्नर से। सेकंड चीज मैं उस प्रेजेंटेशन में जोड़ना चाहूंगा कि जो टॉप मोस्ट होता है वो आपका इंजीनियरिंग कंट्रोल्स होता है, तो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स पे हमें प्रॉपर एड्रेस करना है, और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा पीपी कंट्रोल होता है। तो उसको हमें प्रॉपरली एड्रेस करना है कि इंजीनियरिंग कंट्रोल, फॉर एग्जांपल अगर मशीन अनगार्डेड है तो प्रॉपर वे में गार्ड लगाना है उसमें, ये कि बेटर इंजीनियरिंग कंट्रोल है। या कोई बहुत टॉक्सिक केमिकल यूज कर रहे हैं, उसका कोई रिप्लेसमेंट है, कोई अच्छा सा कोई लेस टॉक्सिक है केमिकल, तो हम उसको यूज कर सकते हैं उसके बजाय कि भाई ज्यादा टॉक्सिक केमिकल को यूज करें, तो वो बेटर इंजीनियरिंग कंट्रोल है। तो बेटर इंजीनियरिंग कंट्रोल से हमारा वर्क प्लेस काफी सेफ्टी में प्रोग्रेस होता है, प्रमोट होता है। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स बेटर होने चाहिए। पीपीज लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वो लेस इंपॉर्टेंट है, बट इंजीनियरिंग कंट्रोल्स आर मोर इंपॉर्टेंट। और मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो अनसेफ एक्शन से होते हैं, अनसेफ एक्शंस अनसेफ बिहेवियर्स से होते हैं, और वो रेगुलर प्रैक्टिसेस नहीं होती वर्कर्स की सेफ्टी को फॉलो करने में, तो वो अनसेफ एक्शंस। और दूसरी चीज मैं एक और व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल कि सेफ्टी के अंदर कोई स्टैग्नेशन पॉइंट नहीं है। स्टैग्नेशन पॉइंट मतलब कि आप ये सोचिए मत कि आज वर्कर आ रहा है, अगर आपने ट्रेनिंग नहीं दी तो वो क्या कर रहा है, अगर अनट्रेन्ड वर्कर है तो वो हैजार्ड आपके वर्क प्लेस पे इंक्रीज कर रहा है। इसमें स्टैग या तो हम हैजार्ड इंक्रीज कर रहे हैं या हम सेफ्टी इंक्रीज कर रहे हैं, रिस्क इंक्रीज कर रहे हैं या सेफ्टी इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम सेफ्टी इंक्रीज नहीं कर रहे तो हैजार्ड इंक्रीज, रिस्क इंक्रीज कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, और वो प्रैक्टिसेस फिर वो कंट्रोल मेजर्स वो मिस हो जाते हैं, तो हैबिचुअल हो जाता है वर्कर, और फिर वो रेगुलर अनसेफ प्रैक्टिसेस करते हैं। ये देखिए आप, ये रोप का सेक्शन मैं दिखा रहा हूँ, इसमें रोप अगर अगर आपने शीप ब्लॉक है, ये पुल्ली है, अगर आपने इसको जो है क्या कहते हैं, रोप इसके ग्रूव के हिसाब से नहीं रखी तो ये भी डैमेज हो जाएगा, रोप भी डैमेज होगी और ये पुल्ली भी डैमेज हो जाएगी। जनरली क्रेन के केस में भी हो जाती है, क्योंकि हम या तो अंडर साइज कर देते हैं या ओवर साइज कर देते हैं, और पुल्ली डैमेज हो जाती है, रोप भी डैमेज हो जाती है, क्योंकि काफी जो हिडन हैजार्ड्स हैं उनमें ज्यादा वो है डेंजर्स, इन स्पाइट ऑफ जो आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं हैजार्ड्स, वो उनके अंदर ज्यादा पोटेंशियल है हार्म करने का। काफी इसमें पॉइंट्स हैं, बट ये मैंने जो शेयर किया आपसे वाले, और जितनी नंबर ऑफ फॉल्स बढ़ेंगे उतना ही लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है। नंबर ऑफ फॉल्स मतलब इस तरीके से है, कई बार क्या करते हैं, ये अनसेफ एक्शन भी बता देता हूँ, जैसे पुल्ली लगी हुई है तो पुल्ली में शॉर्टकट मार के ये फॉल हटा दिया फॉर एग्जांपल, तो इसकी लोड कैरिंग, अब इसकी स्पीड तो बढ़ गई है, ये जल्दी से लिफ्ट तो कर रही है मटेरियल, क्योंकि फॉल आपका 2 डिक्रीज कर दी है नंबर ऑफ फॉल्स, लेकिन इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी घट गई है।
यहाँ पे आपने ये घटा दिया। कई बार होता है ना, पुल्ली में रोप लगी होती है, 4 फॉल है, 1 2 3 4। तो 4 वर्कर क्या करता है, 1 फॉल कर देता है कि भाई जल्दी मटेरियल टाइम सेव करने के लिए। तो उसमें क्या है, लोड कैरिंग कैपेसिटी उसकी रिड्यूस हो जाएगी। काम तो जल्दी हो जाएगा लेकिन लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी रिड्यूस हो जाएगी। थैंक यू सर। एनी क्वेश्चन सर? Pradeep ji, we can ask the audience if any questions are there. Yes, sir. Anybody having some question? You can unmute yourself. Okay, since Pankaj ji, no one is asking, I just wanted to understand one very simple question. You said if the fall is decreased, the speed will increase. Why should that happen? Distance will decrease, no sir? No, Distance sir. will decrease. No, question is, रोप का एक एंड और दो एंड हैं। अगर एक एंड को मैं एक्स से खींचूंगा तो वो एक्स ऊपर आ जाएगा ना? नहीं सर, उसमें क्या है ना, फॉर एग्जांपल आपने है ना एक ही रोप में करा, ठीक है, तो वो 1 पुल्ली से ही होके आ रहा है ना, वो तो इजीली आएगा। उसमें ट्रैवलिंग डिस्टेंस घट गया। बेसिकली क्या है कि अगर आप फॉल बढ़ाते हैं तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ता है। नहीं, वो तो ठीक है। नहीं, सपोज करो मेरा पहले मेरी डिस्टेंस सिंगल रोप का डिस्टेंस एक्स था, मतलब लेट्स से 50 मीटर्स था, ठीक है। और अगर मैंने खींचना स्टार्ट किया, अगर मैं 5 मीटर खींचूंगा या 5 इंच खींचूंगा तो 5 इंच थ्रू आउट सभी फॉल के ऊपर चलेगा ना? हाँ सर, मैं कह रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल देखिए, उसमें आपने एक पुल्ली का डिस्टेंस घटाया है, ठीक है, आपके पास 2 पुल्ली थी पहले, आपने अब राइट, सिंगल पुल्ली कर दी है, ठीक है, सिंगल पुल्ली का आप डिस्टेंस ले रहे हैं अब, तो सिंगल पुल्ली फास्ट चलेगी। हर आप अगर आप गौर से देखेंगे, अगर 4 पुल्ली है, डबल पुल्ली है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों पुल्ली सेम उससे चलती हैं स्पीड से। एक अच्छा, स्लो चलती है, एक थोड़ा सा फास्ट चलेगी। ओके, यू मीन रिलेटिव, हाँ। वो अगर ये पुली ना होती, अगर ये गियर होता तो सब बराबर चलते। नहीं, गियर सिस्टम तो अलग है सर, पुल्ली नहीं, पुल्ली में जो ट्रैवलिंग है। नहीं, what you are telling me is the speed, if it was a regular continuous gear system, the speed would have been same throughout. So what you are saying here is the speed will vary in this case. हाँ, वेरिएंट सर, वेरिएंट। Vary in this case, the pulley speed will vary. The वेरिएंट। pulley की speed एक नहीं रहेगी। Okay. तो वर्कर क्या करता है, शॉर्टकट ले लेता है, ही विल टेक शॉर्टकट। ठीक है सर। सर अश्विनी जी का एक क्वेश्चन आएगा मेरे ख्याल, अश्विनी जी जरूर पूछेंगे कोई ना कोई क्वेश्चन। प्रदीप जी, ये हाउ इज दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोग्रेसिंग इन MSME सेक्शन? हेलो पंकज जी आपसे पूछ रहे हैं अश्विनी जी कि MSME में ये प्रोग्राम है, इस तरह का सेफ्टी का ट्रेनिंग प्रोग्राम किस तरह से प्रोसीड करता है, हाउ इफेक्टिव इट इज? नहीं, मेरे ख्याल से सर प्रदीप सर से क्वेश्चन कर रहे हैं वो। नहीं सर, आपसे कर रहे हैं। पंकज जी नाम आपसे कर रहे हैं सर। पंकज। नहीं अच्छा। लिया नाम उनका, पर नाम मैंने नहीं, इसलिए वो तो करेक्ट कर कर सकते हैं दिया। ना सर, MSME में कर सकते हैं प्रोग्राम सर, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कैसे हो रहा है अभी? व्हाट इज द एक्चुअल ग्राउंड कंडीशंस? हाउ इज दिस safety thinking progressing in MSME over the period? What I understand is that there are only 2 ways it is being operated in any industrial establishment of a smaller size. One is by penalizing it
कि एक्सीडेंट हो गया, उस आदमी को फाइन कर दो, उसको जेल कर दो और वो उस तरह के पेनलाइजिंग कर दो, या दूसरा ये है कि इंस्पेक्शन सिस्टम आया, उसको कुछ ग्रेटिफिकेशन देके उसको दूर कर दो. हाउ एग्जैक्टली इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द फील्ड कि जिससे ये इसकी सेंसिटिविटी और सेफ्टी इज इंक्रीज्ड. सर बेसिकली क्या है कि जो सेफ्टी है ना वो चलेगी प्रोएक्टिव में ही, ठीक है. अब ये तो किसी को दे दिया या उसको वो कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया, वो तो अलग चीज है. लेकिन अगर सेफ्टी की बात करें वर्क प्लेस पे, वो प्रोएक्टिवली चलेगी. प्रोएक्टिव में क्या है, एक तो प्रमोशंस है, सेफ्टी को प्रमोट के लिए हम क्या कर रहे हैं, मीटिंग्स किस तरह से ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, सेफ्टी के पैरामीटर्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्या कंट्रोल मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्या हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट है, ठीक है, किस तरह से पेप टॉक्स दी जा रही हैं, टूल बॉक्स टॉक्स, तब तो सेफ्टी वहां पे एनहांस होगी वर्क प्लेस पे. इसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाउ इज इट इज इम्प्रूविंग इन द फील्ड्स, कितने मैनेजमेंट. पंकज जी, वो अश्विनी जी जानकारी चाहते सर हैं. आपका वॉइस, अगर हाँ जी, आप MSMEs विजिट करते हैं तो ग्राउंड रियलिटी आज लोग सेफ्टी में इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या नहीं? ग्राउंड रियलिटी रेशो क्या कैसे है बढ़ रहा है? MSMEs की? सर देखिए गवर्नमेंट के लेवल पे भी है ना कई प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं. अभी जैसे इसी वीक है ना अमृत महोत्सव का एक प्रोग्राम चल रहा है, उनका पूरा वीक चलेगा. उसकी नोटिफिकेशन भी गवर्नमेंट ने, डीजी फासली ने दी है, और उसमें सब फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए. तो वो एक प्रोग्राम इस तरह से कैंपेन्स गवर्नमेंट चलाती है जो कि है ना प्रमोशन के लिए होते हैं, सेफ्टी के लिए, ओके, जो ठीक है गवर्नमेंट सर. लेवल में. राइट सर, थैंक यू सर. Sameer ji, engineer Sameer Kumar he has raised hand. या प्लीज. नमस्कार सर, आपका ये बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन, बहुत ही डिटेल्ड था. एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है छोटा सा. जब हम रोप के एंड पे एक रोप के एंड को हमने कनेक्ट कर लिया और हम उसे फास्ट करते हैं, जब हम उसे टाइट करते हैं तो हम जनरली रोप क्लैंप यूज करते हैं जो यू शेप में रहता है. और उसको हम जो रोप एंड में, मतलब एक रोप को ट्विस्ट करके लेट से उसमें आई बोर्ड लगाया, तो उसमें कितने हमें ये रोप लॉकिंग का जो ब्लॉक है वो लगाना चाहिए और किस सीक्वेंस में लगाना चाहिए? जैसे हम आपस में उल्टी तरफ लगाएं, 3 लगाएं, 2 लगाएं, ये सवाल है सर. सर उसमें है ना क्या होता है कि डेड एंड और लाइव एंड का होता है मेजर, ठीक है. मैंने अभी आपको एक पिक्चर शो की थी, उसके अंदर आप देखेंगे कि दो एंड पे है ना एक तो आपका जहाँ पे लोड है, दो एंड है ना हाँ आपके. मैं एक मिनट पिक्चर पे आऊँ जरा, हाँ हाँ, प्लीज प्लीज दिखाइए. मैं आपका जो क्लैरिफाई कर देता हूँ क्वेश्चन, एक मिनट जस्ट. हाँ कहाँ? समीर सर, जब तक पंकज जी बताते हैं, उन्होंने एक चीज मुझे बताई थी, बहुत समझ आई थी कि आप 2 एंड्स में पहले लगाओ और फिर बीच में लगा दो. ये वो वेरी स्पेसिफिकली बता रहे थे. अभी वो दिखा रहे हैं सर. एक्चुअली ना ये बड़ा बहुत ही प्रैक्टिकल और बड़ा सेंसिटिव है ये. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, हाँ, क्योंकि इससे किस उसका जो ओरिएंटेशन है वो कैसे होना चाहिए, राइट. या बाद में भेज भी सकते हैं सर अगर टाइम कम है तो. नहीं मैं दिखाई देता हूँ सर आपको. हाँ, या तो ओरिएंटेशन उसका कैसा हो, साइजेस अगर उसमें कोई स्टैंडर्ड है या कोई रिकमेंडेशन है. हाँ लेट्स तो से मैं सर आपको पिक्चर आपको शेयर कर दूंगा, आप उससे उसके हिसाब से कर सकते हैं. और ये फार्मूला भी आपको शेयर कर दूंगा सर, आप उस हिसाब से भी देख सकते हैं मेजर करके पिक्चर के साथ. बहुत इम्पोर्टेंट है सर, बहुत हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार वहां से फेल हो जाती हैं और फिर पता नहीं लगता, क्योंकि वो टॉप में होता है पोर्शन और वो पता नहीं लगता. अच्छा, इसमें ना सर. एक तो ये देखिए, ये वेस्ट सॉकेट है एक, देख रहे हैं आप? हाँ, इसको हाँ दिखाई दे रहा है. ये वेस्ट सॉकेट लगा होता है, कई क्रेनों में वेस्ट सॉकेट होता है, तो उसको भी इस्तेमाल करने का यही तरीका है.
और ये ऐसे लगा देते हैं तो गलत है। जी, लेकिन मैं ये तो पिक्चर एक ही शेयर दिख रहा है सर, एक दिखाना नहीं, मैं एक दिखा लगा, हाँ जैसे ये दिखाया हुआ है। ये देखिए हाँ, ये देखिए, देख रहे हैं सर? दिख रहा है सर। हाँ, हम्म। इस तरीके से है। और पॉइंट दिखा देता हूँ आपको। ये हुक का तो मैंने आपको दिखाई दिया था सारा, डी शेकल्स का भी दिखा दिया था। एक नहीं अपना देखा सर, मैंने देखा यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ये नहीं हाँ तो जी, मैं बाद में कनेक्ट कर लूंगा आपसे, हाँ जी, हाँ जी। है ना, मैं कनेक्ट कर लूंगा। बट बहुत अच्छा था सर, बहुत डिटेल में। मैंने करीब 15 साल पहले एक एनएससी का प्रोग्राम मुंबई में अटेंड किया था, हाँ जी, टेस्टिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ लिफ्टिंग व्हीकल एंड हॉइस्ट। हाँ जी। तो काफी अच्छा प्रोग्राम था। 15-20 साल बाद मैं ये आपका सेशन अटेंड कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सर, गुड थैंक गुड, यू वेरी मच सर। है ना, सर ये बहुत ही देखिए बढ़िया, फिगर, बहुत ही देखिए ये डिटेल थी। फिगर आप देखिए, ये वाली हाँ, फिगर ये देखिए दिख रहे सर, हैं। दिख रही है ना ये आपको सही ये है सर, फिगर? सही तरीका है। हाँ ये जो है, हाँ ये देखिए डेड एंड है, ये वाला एंड, ये वाला डेड एंड है, ये मुड़ा हुआ दिखा हाँ रहे हैं ना ऊपर टॉप, हाँ हाँ ये हाँ हाँ आपका डेड एंड है, इस पे कोई लोड नहीं है। ठीक है सर? हम्म। और इस पे लोड है, हम्म। ये वाले पे लोड है। ठीक है? हाँ तो मैंने, बुलडॉग ग्रुप हाँ यहाँ पे जैसे मैं आएगा। एक इलेक्ट्रिक सर सर थोड़ा थोड़ा सा रोक रहा हूँ। एक हाँ जी, इलेक्ट्रिकल हाइस्ट है, वायर रोप हाइस्ट। तो हाँ उसमें जी, एक एंड ऊपर की तरफ रहेगा और दूसरा एंड नीचे रहेगा, हाँ राइट, जी, हाँ जी, है ना। तो हाँ डेड जी। एंड किसको बोलेंगे आप? नहीं ना ना, जिस पे लोड आ रहा है लाइव एंड वो है, और डेड एंड ऊपर जो एंड हो गई है रोप, एंड हो हाँ, गई है, एक एंड समझ लगेगा गए। वहां पे, हाँ ठीक है, है ना? वो लगेगा। जहाँ से रोप ड्रम स्टार्ट हो रही है। हाँ, जहां से हाँ जहां पे डेड है वो उस पे हाँ लोड है ही नहीं। हाँ ठीक है? हाँ हाँ और इसको हाँ, लगाने का तरीका सर ये है, इसमें आपको एक तो पहले लगा दीजिए एंड पे। ठीक है? हम्म। फिर आप लगा दीजिए इस एंड पे, फिर आज लगा दीजिए बीच वाले एंड पे। इसका और इसका ओरिएंटेशन मैटर करता है क्या सर? ये एक नीचे हो, एक ओरिएंटेशन, हाँ, ऊपर हो। ये इसका जो बुलडॉग ग्रिप का है, ये ऊपर, ये डेड एंड पे आएगा, टॉप पोर्शन, ऐसे लगाना। अच्छा अच्छा। नहीं वो हाँ समझ ये में आया डेड, सर, लेकिन हाँ इसमें हाँ आप देखिए ना, सबके जो नट का साइड वो है एक ही तरफ है, डायरेक्शन। हाँ, एक ही तरफ है अगर ना, हम इसको, अपोजिट नहीं रहना सर, ना ना ना, अपोजिट गलत है। वही मैं पूछ रहा हूँ, हाँ। हाँ हाँ, अपोजिट गलत है, अपोजिट लगा देते हैं लोग, वो गलत मेथड है, और वो खुल सबके जाएगा। बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। हाँ, और सबके बाद में डिस्टेंस, डिस्टेंस का बता रहा हूँ मैं फार्मूला सर, ये हाफ 1/2 इंच रोप है, D/6 क्लिप स्पेसिंग है। आप इसको ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंच का स्पेस होना चाहिए। बहुत बढ़िया है सर। देखिए ये हुआ ना बात अच्छी, थैंक यू सो मच, गुड आंसर। हाँ, वेलकम सर, मैं खुश हूँ सर। दूसरा सर, मैंने 2 छोटे इनोवेशन किए, वो मैं आपसे कनेक्ट करूंगा, क्रेन रिलेटेड। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल छोटे सर, कर, छोटे तो मैं बाद में कनेक्ट ठीक, करता हूँ। थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू समीर सर। हाँ, कुलदीप सर। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ हाँ जी सर, बताइए सर। Any और more कोई? questions? Any more questions? Okay. Thank you, Pankaj sir. It was very elaborated description. Now I request our Honorary Secretary sir for vote of thanks.